Hello students, let us discuss about nucleic acids. What is meant by nucleic acid? First of all, we'll discuss. These are what? These are actually the polymers of nucleotides. Polymers of nucleotides. This word maybe you have heard about this nucleic acids. क्या होते हैं? DNA, RNA. It is very important. Let us discuss actually. In a cell, nucleus used to be there, and the nucleus contains genetic material that is called as chromosome. तो हम ये कह सकते हैं कि chromosomes are the compounds of proteins and nucleic acids. So what is nucleic acid? These are the important constituents of chromosomes which transfer genetic information from one generation to other generation. So basically two type of components are there. DNA, that is deoxyribonucleic acid, and the second is RNA, ribonucleic acid. Both these are made up of nucleotides. Long chain is there, so it is also called as polynucleotides. Now, पढ़ना क्या है हमें देख लें एक बार शॉर्ट में. न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये बनते हैं न्यूक्लियोसाइड से. न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड लिंक होता है, नाइट्रोजनस बेस लिंक होता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है. न्यूक्लियोटाइड्स एक से ज्यादा कई सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में लॉन्ग चेन बनाती हैं तो वो आपका न्यूक्लिक एसिड बनाता है. न्यूक्लियोसाइड जो है एक्चुअली it is composed of two types. The first thing, it is having nitrogen base, and the other one is having pentose sugar. Nitrogen base is further classified as purines and pyrimidines. So in detail, we have to study all these. Now let us start one by one. Chemical composition. First of all, pentose sugar. We discussed about two nucleic acids, DNA and RNA. So actually, we have to see both the sugars, pentose sugar present in this and that also. About DNA, if I discuss pentose sugar means 5 carbon atom, furan जैसा structure. Here it is OH, H, HNH, HOH, H, CH2OH. 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms are there. Okay, ये डीएनए में एंड इसका नाम होता है बीटा डी टू deoxyribose. Fine. Now let us discuss about RNA. सब कुछ डीएनए जैसा, बस यहाँ डिफरेंस होता है. यहाँ इसमें दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. रेस्ट इज सेम, नो डिफरेंस. इसमें भी 5 ही कार्बन एटम है एंड दिस इज योर बीटा डी राइबोज. So remember, this pentose sugar is present in DNA and this is present in RNA. पहला. दूसरा कंपोजिशन होता है फॉस्फोरिक एसिड, that is what? H3PO4. And the third composition about the nitrogenous base. ये नाइट्रोजनस बेस वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने आप में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं. बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स and pyrimidines. Purines are further of two types, adenine and thymine.
Whereas pyrimidines, these are of three types: uracil, thymine, not thymine, guanine, and cytosine. Total ये होते हैं. Now we'll see the structure of nucleic acid. क्या न्यूक्लियोसाइड क्या न्यूक्लियोटाइड डायग्राम्स के साथ देखें. It's a very short topic. Nucleoside. Actually, basically it is composed of a pentose sugar. See, एक pentose sugar जिसके साथ में एक नाइट्रोजिनस बेस भी कनेक्टेड होता है. आई एम राइटिंग हियर NB, that is nitrogenous base. If I take about ribose, then it will be like this. Okay, ध्यान देने वाली बात कि ये एक पेंटोज शुगर है जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड है, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. नाउ अबाउट न्यूक्लियोटाइड, यहां पर नाम नंबर्स दे दे. 1 2 3 4 एंड 5. सारा केवल नंबर्स को बहुत ध्यान से देखना. एक पेंटोज शुगर जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड है. यहाँ राइबोस शुगर लिया था, यहाँ हमें डीऑक्सी राइबोस शुगर ले रहे हैं. इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ना है. याद रहे, यहाँ पर इसके साथ जब हम एक फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल भी जोड़ते हैं तो यहाँ पर वेरिएशन होता है. क्या वेरिएशन होता है? इस ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका एक ऑक्सीजन तो है ही, पी डबल बॉन्ड ओ फास्फोरस PO4 को जोड़ना है. चारों तरफ ऑक्सीजन एटम्स. ये एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड जिसमें फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों प्रेजेंट होते हैं. If we have 2 moles of this one, एक और same unit I will take here, एक और same pentose sugar having nitrogenous base connected with क्या देखेंगे, दोनों की दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगी. कनेक्शन कहाँ होगा? फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. इसको जाकर इस थर्ड के साथ जुड़ना है. यहाँ ये फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ा है और यहाँ जाकर ये थर्ड के साथ जुड़ेगा. सो इट विल बी लाइक दिस. ये फिफ्थ और ये थर्ड, इसके साथ में ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया. क्या देखेंगे आप? लिंकेज कहाँ है? ये 5' और ये 3'. तो न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं. जब ऐसे लॉन्ग चेन पॉलीमर बन जाता है देन इट विल कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. रिमेंबर द लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स. हियर दिस लिंकेज इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम्स है. अगर याद नहीं होता है तो एक और शॉर्ट तरीका होता है याद रखने का कि एक शुगर है, राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसमें एक बेस कनेक्टेड है. ओके, और ये आपका फॉस्फोरिक एसिड के साथ में बॉन्ड बनाता है.
ये क्या है आपका फॉस्फेट आयन, PO4, फॉस्फेट आयन। ये आपकी दूसरी यूनिट के साथ जुड़ जाता है, फिर से एक शुगर, फिर से एक बेस, again that same repetition is there। तो ये एक इजी तरीका हो सकता है, सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है न्यूक्लिक एसिड्स का। Now the last point about the primary and secondary structure. Primary structure and secondary structure. Primary structure actually it contains information regarding the sequence of nucleotides in the chain of nucleic acid. ओके और सेकेंडरी में क्या रहता है कि दो सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक ये एक ये, एक अगर 5 डैश एंड 3 डैश है तो दूसरा इसका रिवर्स होगा 3 डैश एंड 5 डैश। और ये आपके नाइट्रोजनस बेस कंटेन करते हैं, वो नाइट्रोजनस बेस आपस में दो तीन अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, अगर एडेनिन है तो उसके साथ में थायमिन होगा, अगर साइटोसिन है तो उसके साथ में गुआनिन होगा, अगर थायमिन है तो उसके साथ में एडेनिन होगा, अगर गुआनिन है तो उसके साथ में साइटोसिन होगा। रिमेंबर इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। स्पेसिफिक दीज टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 5 5 और 3 3 नहीं है, 5 डैश एंड 3 डैश, 5 डैश 3 डैश क्यों दिया, स्ट्रक्चर में देखा था हमने कैसे बनता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। द लास्ट थिंग, this was all about the DNA. Now in RNA if we see, adenine is there, guanine is there, cytosine is there, but instead of this T thymine, there the uracil is there. These are the 4 nitrogenous bases. At last, RNA molecule, it is of 3 types: mRNA, messenger RNA, rRNA, ribosomal RNA, and tRNA. This is the word transfer RNA. Here your nucleic acid is over.